Hello everyone, welcome to the Future Genius Chemistry classes. This is part number 4 for the chapter Electrochemistry, class 12. In the previous video, we were discussing about electrolysis of aqueous sodium chloride, right? I taught you guys about the construction of the cell and the working of the cell, and I also gave you this master trick over here, which told you that which gave you an idea of which cation or anion will get oxidized or reduced at the respective electrons, right? नाउ इन दिस वीडियो हम थोड़े से और एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं जिससे आपको ये ट्रिक को यूज़ करना और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है? सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट है एक्वस सोल्यूशन का, तो कॉपर सल्फेट और वाटर होगा इसमें. Copper sulfate gets dissociated into copper cation and sulfate anion, and my water gets dissociated into H plus proton and hydroxide anion. Now anode क्या होता है? Positive terminal of the battery होती है. Yes guys, I will not go into the details over here because I have already taught you guys that the working of the cell in the previous video, right? And I'm also making a playlist of this chapter, so just follow that playlist so that you guys know which lectures have been done. Okay, so those who haven't seen the previous video, please go watch for the working of the aqueous solutions. Okay, सो मूविंग बैक टू द क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट की बात कर रही थी मैं. तो मुझे पता है कि मेरे एनोड पर क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज अटैच्ड टू माई एनोड, right? So obviously my anions are going to get attracted towards anode. Now there's a competition between two anions, sulfate and OH negative. Now there's what is the competition? That which anion will come and get oxidized at anode. So I'll go back to my trick. What was the trick? For in case of anode, what did they say? अब मेरा anode क्या है, सल्फेट है ना? तो सल्फेट यहाँ पर फॉल कर रहा है. इट इज सेइंग दैट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ग्रेटर दैन सल्फेट. सो आई नो दैट OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर हैज़ ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैन सल्फेट. सो मेरे एनोड पर कौन आने वाला है, OH नेगेटिव आने वाला है टू गेट ऑक्सीडाइज्ड. सो इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन इन द प्राइमरी change and it will get converted into neutral species, and the secondary change it will get converted into water and oxygen gas, right? So I know that during electrolysis of aqueous solution of copper sulfate, I get my oxygen gas at anode, or I can say that oxygen gas is liberated at anode. Similarly, when I talk about the cathode, I have a competition between this proton and copper plus 2 cation. So according to the trick, copper plus 2 cation doesn't falls into group 1, 2 or 13, right? Copper plus 2 doesn't falls into these groups. So the reduction potential of copper plus 2 will be greater than the reduction potential of water. So now from the trick I know that at cathode my copper will get reduced. So this copper cation, it gains 2 electrons and get converted into neutral species, right? Another example, here I'll be taking the example of aqueous solution of silver nitrate. I know that silver nitrate gets converted into dissociated into silver cation and nitrate anion and water H plus OH negative. Anode, at anode there will be a competition between what, nitrate anion and OH negative anion, because it is connected to the positive terminal of the battery. So my anions are going to get attracted towards anode. So there's a competition between these two anions. I'll go back to my trick. I'll see that which will get oxidized. So OH negative and NO3 negative. Yes, here's NO3 negative, and it is saying that oxidation potential of water is greater than the oxidation potential of these anions, and I am concerned about nitrate in this particular case. So I know that OH negative has the greater oxidation potential from NO3 minus. So at anode my at anode my OH negative will get oxidized. Reaction we have already seen in the previous example, ठीक है. कैथोड पर फिर से वही नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच्ड है, तो इस पर कैटायंस आने वाले हैं. देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन विच कैटायंस, सिल्वर कैटायन एंड H plus cation. So when I know that from my trick I know that Ag plus doesn't falls into group 1, 2 or 13 of the periodic table. That is why the reduction potential of
silver is greater than the reduction potential of water or the ion which came from water. So my silver will get reduced at cathode. It will gain one electron and get converted into neutral species. Fine. Now there's a bit different example over here and it is very important. Okay, focus on this example. कभी कभार हमसे पूछ लेते हैं एसिडिफाइड वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करो. सो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड ओवर दिस. सो इस पर फोकस करना थोड़ा. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4. डाइल्यूट मतलब कि पानी डला हुआ H2SO4, ठीक है, या फिर एसिडिफाइड वाटर. फाइन. So pure water is a poor conductor of electricity because it's equally ionized, but addition of few drops of an acid to water makes it a good conductor. Right? Now I know that my water gets dissociated into proton and hydroxide anion, and my sulfuric acid, it will get dissociated into H plus cation and sulfate anion. Right? So I am having one cation only. So there will be no competition between the cations in this case, but I have two anions. So there will be competition between the anions, but not in the cations because cations are same in both the cases, right? Now moving on to the reactions. Anode, again I know that it is connected to the positive terminal, so my anions are going to get what? Attracted towards the anode. I have two anions over here, OH negative and sulfate anion, and I saw in the trick that my oxidation potential for OH negative was greater than sulfate anion, right? So I know that my OH negative will get oxidized over here. The reaction I have already seen that it will lose one electron because it is getting oxidized and get converted into neutral species, and in the secondary process it will form what? Water and oxygen gas. Similarly in the cathode, reduction will take place, and there was no competition between the cations because I had one type of cation only in this particular case. So my proton or H plus cation will come and get reduced at cathode. So it will gain one electron and form neutral species in the primary change, and in the secondary change it will get converted into its what? Stable form, that is H2 gaseous form. So I know that when I am talking about my electrolysis of acidified water, which gas is liberated at anode? Oxygen gas. And which gas is liberated at cathode? My hydrogen gas. Fine. Students, please take care of this thing, that you know which gas is liberated at what electrode, because such type of questions are very common in JEE and NEET exams. Fine. So इस पर थोड़ा सा ध्यान देना. Now इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे थे, हमने उसमें किस किस की बात कर ली है वो एक बार देख लेते हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स, राइट, जिसमें मैंने बात करी थी सोडियम क्लोराइड की. देन वी हैव ऑल्सो डन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड, राइट. सो वी आर डन विद दिस पार्ट. Then we had electrolysis of aqueous salts, where I talked about aqueous sodium chloride in the previous video. Then in the starting in this video I made you guys do the electrolysis of copper sulfate. Then we have also done the electrolysis of aqueous silver nitrate, and at last we did electrolysis of acidified water or dilute H2SO4, right? Now the third case is for the electroplating. After this we will be done with our electrolysis part. Fine. Now what is this electroplating? Let's see that. So electroplating, it is saying that electroplating is a type of metal finishing where a metal coating is applied to the surface of a part or a component using an electric current. क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि मेटल को फिनिशिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेटल की कोटिंग कर देते हैं. कोटिंग मतलब कि उसकी परत चढ़ा देते हैं या फिर उसकी लेयर बना देते हैं एक दूसरे पार्ट के ऊपर या कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है. जैसे मेरे पास, मैं बात करती हूँ कि मेरे पास चांदी की कोई चीज़ है, कोई ज्वेलरी है, ठीक है. सपोज आई हैव अ सिल्वर रिंग एंड आई वॉन्ट टू इलेक्ट्रोप्लेट इट थ्रू गोल्ड, फ्रॉम गोल्ड with gold. Okay, so what will I do? I will do this process, that is electroplating, through what? Using an electric current. So which process I'm going to use? Electrolysis, right?
So the purpose of electroplating is what? That we are going to study electrolysis and we are going to use it in our daily life. And what daily life things we have seen electroplated things? We have seen gold plated watches, right? Now by saying that it is gold plated watch, I don't mean that this watch is entirely made up of gold. No, इसका मतलब क्या हुआ कि ये गोल्ड प्लेटेड वॉच जो है बनी तो अपने नॉर्मल चीज़ों से ही है. ये लेदर की स्ट्रैप है और इसमें बाकी चीज़ें भी अपनी जो नॉर्मल यूज़ होती हैं वो है. बस मेरा जो इतना पार्ट है, ये जो डायल है, इस पर आप देख रहे हो कि गोल्डन कलर है इस पर. तो मैंने क्या किया, बस इसी पर लेयर की बात कर रही हूँ. इस पर एक गोल्ड की लेयर है, तो वो लेयर ही चढ़ाने के प्रोसेस को क्या बोल रही हूँ मैं? प्लेटिंग बोल रही हूँ या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल रही हूँ. ठीक है. Similarly, I have this copper plated mug over here. This mug is plated with copper. Silver plated teapot, silver plated goblet and chrome electroplated tap. Chromium भी इसमें मैं बोल सकती हूँ. You know about the metal chromium, जो हमारे बाथरूम्स में सैनिटरी होती है. यूजुअली टैप्स हो जाते हैं, शावर के जो पार्ट्स होते हैं, all of those are mostly electroplated with chromium. फाइन. सो वाई डू वी डू दिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग? मोस्टली फिनिशिंग देने के लिए. फिनिशिंग इन द सेंस कि किसी चीज़ को इन्हांस्ड या फिर सुंदर दिखाने के लिए, डेकोरेशन पीसेस के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं. ठीक है. या फिर किसी को स्ट्रेंथ देने के लिए भी ये यूज़ हो सकती है. स्ट्रेंथ इन द सेंस कि कोई मेटल जो है वो वैसे वीक है या फिर ईजिली सॉफ्ट सा है, तो उसके ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाए. फाइन. नाउ प्रोसेस देख लेते हैं कैसे होता है. हेयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अब ध्यान से सुनना इस बात को. मेरे पास एक क्या है, ब्रास का स्पून है. ठीक है. मेरे पास एक ब्रास का स्पून है. दिस इज माई स्पून ओवर हियर. और मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, इस पर कॉपर की परत चढ़ाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू इलेक्ट्रोप्लेट दिस पर्टिकुलर ब्रास स्पून विथ कॉपर. राइट. तो मैं कॉपर का क्या लूँगी, कॉपर मेटल का एक पीस ले लूँगी. ठीक है. दिस इज माई कॉपर मेटल ओवर हियर. नाउ आई नो व्हाट electrolysis process I am going to use in this particular thing. तो मेरा सेल तो सिमिलर रहने वाला है. ठीक है. बस डिफरेंस किस में आया, मेरा इलेक्ट्रोड्स में डिफरेंस आया है. ये मेरा कॉपर का इलेक्ट्रोड है और ये मेरी सिल्वर ब्रास की स्पून है. ठीक है. आई लेबल दिस फॉर यू गाइज. दिस इज माई ब्रास स्पून. ठीक है. और ये मेरा कॉपर का रॉड है. ठीक है. अब इसमें दो चीज़ें ध्यान रखना कि मैंने इस पर किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है, कॉपर की. तो मैं जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना चाहती हूँ उसकी रॉड को मैं क्या लेने वाली हूँ, एनोड लेने वाली हूँ. ठीक है. और वैसे भी ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, ये नेगेटिव से. तो ये वाली जो साइड है ये मेरी क्या होगी, एनोड होगी. एंड दिस साइड विल बी माई कैथोड. राइट. तो मैंने क्या बोला कि जिसकी प्लेटिंग मैं करवाऊंगी, जिसके ऊपर, तो जिस कॉपर की प्लेटिंग करवानी है मुझे, तो मेरा कॉपर हमेशा मैं क्या लूँगी, एनोड लूँगी. ठीक है. जब भी मुझे कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है. ठीक. और जो मेरा सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, जो मेरा एनोड है उसी के ही सॉल्ट का सोल्यूशन होगा. सो दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन ओवर हियर इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. मैंने क्या इलेक्ट्रोड लिया है यहाँ पे, कॉपर रॉड लिया है, तो उसी का ही सॉल्ट का सोल्यूशन मैंने यहाँ पे ले लिया. ऐसा क्यों किया है ये मैं आपको वर्किंग में समझाऊंगी. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल आपको समझ आई. बिल्कुल सेम जो मैंने पिछले वीडियोस में इलेक्ट्रोलिसिस कराया है, बिल्कुल सेम वैसा ही है. ठीक है. इसकी वर्किंग देख लेते हैं. नाउ आई एम हैविंग दिस कॉपर रॉड ओवर हियर लाइक दिस. इसमें एटम्स बनाए हैं मैंने कॉपर के. ठीक है. और ये मेरा ब्रास का स्पून है. मैं इसको एक बार लेबल कर देती हूँ आपके लिए. दिस इज़ माई ब्रास स्पून. कॉपर की रॉड तो आपको पता चल ही रही है. ये मेरा एनोड है. मैंने आपको बताया था कि जिसकी प्लेटिंग मैं करवाऊंगी उसको हमेशा मैंने एनोड लेना है. ठीक है. ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये याद रखा करो ताकि आपको आसानी आए फ्यूचर में भी. फाइन. एंड आई टोल्ड यू दैट दिस सोल्यूशन इज़ व्हाट, माई कॉपर सल्फेट सोल्यूशन.
right? So you guys know now that this solution contains copper 2+ cations and sulfate anions, right? ये चीज़ मैं मानकर चल रही हूँ कि आपको पता है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था that my neutral atoms remain in the solid and ions remain in what? Solution, right? अब मैं प्रोसेस को देख रही हूँ, ठीक है। अब देखो, दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, व्हाट डज इट डू? इट पुल्स इलेक्ट्रॉन, पुल करेगी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, एंड दिस नेगेटिव टर्मिनल इट पुशेस इलेक्ट्रॉन किसके अंदर? सेल के अंदर। सो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ से? इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ से? सपोज मैंने ये कॉपर ले लिया, एक न्यूट्रल कॉपर इस रॉड में से, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। इट इज़ गिविंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये वाला पर्टिकुलर कॉपर मैं ले लेती हूँ और इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और बैटरी ने बेसिकली पुल कर लिया इसका एक इलेक्ट्रॉन। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा एक, तो क्या हो रहा है? इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो मेरे एनोड पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ध्यान देना, एनोड पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। और कॉपर की ऑक्सीडेशन कैसे होती है? कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट गिव्स 2 electrons, right? It loses 2 electrons and gets converted into copper +2 cation, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा पर्टिकुलर कॉपर है, ये वाला प्रोसेस मैं आपको समझा चुकी हूँ इलेक्ट्रोलिसिस का, बस इसमें ध्यान से देखना कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे हो रही है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? कॉपर 2+, राइट। ऐसे ही ये वाला भी कन्वर्ट होता रहेगा। तो ये वाले जो कॉपर 2+ में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ये क्या अब इसी के अंदर स्टिक रहेंगे? नो, ये स्टिक नहीं रह सकते, बिकॉज अभी अनायंस कटायंस बन चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि मेरी रॉड के अंदर क्या रहते हैं? न्यूट्रल स्पीशीज़ रहती है। और मैंने ये भी बताया था कि जो मेरा सोल्यूशन है उसके अंदर क्या रहते हैं? आयंस रहते हैं। तो नाउ दिस न्यूट्रल कॉपर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू व्हाट? cation. So now it will get dissolved into my solution, ठीक है। तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर मेरा सोल्यूशन आ गया है, सॉरी, यहाँ पर मेरा कॉपर का एक आयन आ गया है। सिमिलरली मेरा ये वाला कॉपर भी अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दे तो क्या हो जाएगा? ये वाला भी अंदर आ जाएगा सोल्यूशन के। समझ रहे हो? इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा। तो ये भी कॉपर +2 हो गया, ये कॉपर +2 हो गया। तो ऐसे ऐसे करके ये क्या होंगे? कॉपर के जो कटायंस हैं, न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं, ये जो कॉपर की इस रॉड में, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देकर क्या चले जाएंगे? इस सोल्यूशन में आ जाएंगे। और इस सोल्यूशन में ऑलरेडी भी क्या है? कॉपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ना। तो अब क्या होता है? ये वाला यहाँ का तो आपको समझ आया कि इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए और ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ से क्या करती है? बैटरी पुश करती है इलेक्ट्रॉन्स को। ये भी बताया था मैंने, बैटरी क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रही है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कौन लेगा? ये कॉपर +2 है सपोज, इसने अभी ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लेगा तो क्या होगा? कॉपर +2 ने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये न्यूट्रल कॉपर में चला गया। समझ आया ये बात? अब ये क्या हो गया? आयन से न्यूट्रल स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो गया। और मैं फिर से अपना वही लॉजिक लगाने वाली हूँ कि आयन्स रहते हैं सोल्यूशन के अंदर और जो न्यूट्रल स्पीशीज़ है वो रहती है किस पे? सॉलिड पे। तो अब ये वापस इसके ऊपर तो नहीं जाएगी ना, क्योंकि यहीं से तो आया ये। तो अब ये किस पर जाकर स्टिक होगा? इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, जो मेरा कैथोड है उस पर जाकर स्टिक हो जाएगा। तो ये क्या होएगा? यहाँ पर आएगा और मैं यहाँ पर अपना एक कॉपर लगा दूंगी, ठीक है। तो ये मेरा न्यूट्रल स्पीशीज़ हो गया, जो कि मेरे ब्रास के स्पून के ऊपर क्या हो गया? स्टिक हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो कॉपर +2 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई तो आए जा रहा है ना, आता जा रहा है। एक और इलेक्ट्रॉन आया, इसको किसने ले लिया? इसी कॉपर ने ले लिया। तो ये भी जाकर क्या हो जाएगा?
स्टिक हो जाने वाला है मेरे स्पून के पास। कैसे? न्यूट्रल बनने के बाद। प्रोसेस समझ आ रहा है? तो अब ये ज़रूरी नहीं है, एक और चीज़ देख लो कि ज़रूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं वो इन्हीं कॉपर को लेंगे। जो हमारा सोल्यूशन है इसमें भी तो है ना कॉपर, जो सोल्यूशन है इसमें भी तो बहुत सारे कॉपर प्रेजेंट है, ठीक है, और सल्फेट आयंस भी प्रेजेंट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स कोई भी कॉपर का कटायन ले सकता है और रिड्यूस होने के बाद क्या हो सकता है? स्टिक हो सकता है इस स्पून के ऊपर। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस फर्दर चलता रहेगा, यहाँ से कॉपर की रॉड क्या होती जाएगी? कॉपर की रॉड डिज़ोल्व होती रहेगी, क्योंकि यहाँ के कटायंस तो सारे क्या न्यूट्रल स्पीशीज़ जो कॉपर के एटम्स हैं ये तो डिज़ोल्व होते रहेंगे इसमें, है ना। और यहाँ से डिज़ोल्व जो हैं मेरे आयंस, कटायंस कॉपर के, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर करके किधर स्टिक हो जाएंगे? इस स्पून के ऊपर। तो धीरे धीरे मैं देखूंगी कि मेरे पूरे स्पून के ऊपर क्या होगा, बहुत सारे क्या आ जाएंगे? कटायंस आ जाएंगे, बहुत सारे कटायंस आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे स्टिक हो जाएंगे। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा जो ये पर्टिकुलर स्पून है ब्रास का, ये ब्रास से क्या हो जाएगा? कॉपर का स्पून बन जाएगा। समझ आया? ये ब्रास से क्या बन जाएगा? कॉपर का स्पून बन जाएगा। अब प्रोसेस समझ आ गया? यहाँ पर क्या हुई थी? ऑक्सीडेशन हुई थी, इसलिए मेरा सेल रिएक्शन क्या हुआ? कॉपर का, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हुआ। यहाँ पर मेरी कैथोड पे क्या हुई? रिडक्शन हुई। किसकी हुई? कॉपर की ही हुई। तो कॉपर ने ही गेन करे थे ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर का आ गया। तो इस चीज़ में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोड मैंने लिया है ना, इलेक्ट्रोड तो बेसिकली मैंने कॉपर का लिया, ये तो मैंने क्या लिया? मेरा एक सब्सटेंस लिया जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग मुझे करनी है। तो मेरा कॉपर ही ऑक्सीडाइज हो गया और कॉपर ही रिड्यूस हो गया। और मैंने सोल्यूशन भी कॉपर सल्फेट का क्यों लिया? क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉपर के कटायंस की कंसंट्रेशन चाहिए थी, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही उसकी करानी थी, ठीक है। आपको ये भी समझ आ गया होगा कि मैंने इसी को एनोड क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसी से इलेक्ट्रॉन्स लेने थे। दिस प्रोसेस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल अगर मैं इसको कैथोड बना देती। समझ आ रहा है लॉजिक हर एक चीज़ का, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अब मैंने देखो इस ब्रास स्पून को तो मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? अपने कॉपर स्पून में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा दी। अब इस पर क्या चढ़ गई है? कॉपर की एक लेयर चढ़ गई है। अंदर से तो ये ब्रास का ही है, लेकिन इसके ऊपर मैंने एक परत चढ़ा दी है कॉपर की, ठीक है। तो अब मैं इस कॉपर स्पून को, ये एक दूसरा एग्जाम्पल है मेरा, मैं इस कॉपर स्पून के ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग करना चाहती हूँ। ये मेरा सिल्वर रॉड है, ठीक है, इसकी प्लेटिंग करना चाहती हूँ, ठीक। तो अब इस सेटअप को समझ लो। ये मेरी सिल्वर रॉड है जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने करवानी है, उसको मैं हमेशा क्या लेती हूँ? एनोड, राइट। ये मैंने आपको बताया है। और ये मेरा जो सोल्यूशन है ये भी इसी का ही सॉल्ट सोल्यूशन होगा। तो मैंने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ले लिया। तो मेरे इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में मेरे सिल्वर कटायंस हैं और नाइट्रेट अनायंस हैं, ठीक है। प्रोसेस को जल्दी से समझ लेते हैं। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या करेगी? पुल करेगी इलेक्ट्रॉन को, और ये क्या करेगी? ये नेगेटिव टर्मिनल पुश करेगी इलेक्ट्रॉन को। तो सबसे पहले प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये जो न्यूट्रल एजी है, सिल्वर है, इसने इलेक्ट्रॉन अपना लूज करा, ऑक्सीडेशन हुई एनोड पे, लूज किया। लूज करने के बाद ये आयन में कन्वर्ट हो गया, और आयन में कन्वर्ट होने के बाद इट डजंट रिमेन एट दिस इलेक्ट्रोड एनीमोर, इट गेट्स डिजॉल्व्ड इनटू व्हाट? माय सॉल्यूशन। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया उसने एक कटायन यहाँ से ले लिया और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, रिडक्शन हुई, और वो जाकर मेरे कॉपर स्पून पे जाकर स्टिक हो गया। तो जैसे पिछले प्रोसेस में मैंने दिखाया था कि कैसे कॉपर वाले जो मेरे आयंस थे वो स्टिक हो गए थे न्यूट्रल स्पीशीज़ बनके, सिमिलरली इस प्रोसेस में मेरे जो सिल्वर के कटायंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रिड्यूस होने के बाद न्यूट्रल स्पीशीज़ में कन्वर्ट होने के बाद मेरे स्पून के ऊपर स्टिक हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे बहुत सारे सिल्वर एटम्स जो हैं स्टिक हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद आई नो कि मेरा जो ये कॉपर का स्पून है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिल्वर के स्पून में कन्वर्ट हो जाएगा,
सो दैट वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग. आई होप आपको समझ आया होगा. इसकी मैं आपको एक बार रिएक्शंस बता देती हूँ. सिल्वर स्पून, राइट. नाउ मुझे पता है एनोड पे किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, सिल्वर की हुई है. तो सिल्वर का मैं सेल रिएक्शन लिख देती हूँ. ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, Ag जो है वो लूज़ कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, कटायन में कन्वर्ट हो रहा है, राइट. और कैथोड पे क्या होगा, सिल्वर ही गेन कर रहा है. तो Ag प्लस विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू माय न्यूट्रल सिल्वर विच स्टिक्स टू माय स्पून ओवर हेयर, जिसको मैंने कैथोड लिया. ठीक है. और जो मेरे ये अनायंस हैं इनका क्या काम है, ये नाइट्रेट है, ये सिल्वर है, ये ऑलरेडी भी मेरे AgNO3 सोल्यूशन में वैसे भी प्रेजेंट थे. सिमिलरली यहाँ पे भी मेरा सल्फेट भी प्रेजेंट था, कॉपर भी प्रेजेंट था. तो ये क्या करते हैं, इन्हीं से ही मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन करवाता है, आयंस करवाता है. तो ये आयंस ही हैं जो इस फ्लो को मेंटेन रख रहे हैं. ठीक है. तो और एक और चीज़ देख लेना कि ये जो सिल्वर की रॉड है या फिर मैंने सिल्वर का जो पीस लिया है, ये प्रोसेस के होने के बाद क्या हो जाता है, ये कम हो जाती है, वायर डिज़ोल्व हो जाते हैं ना आयंस, तो इसका वेट कम हो जाएगा. ठीक है. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो टुडे. आई होप यू लाइक्ड द सेशन and this is my number. WhatsApp me to clear your doubts or for the PDF of notes. Subscribe to my channel and share my courses.